The team winning will enter the semi-final. They will be playing on the third day, that is 7th. And they will be playing under the sunlight. That is the first semi-final of this tournament. Little surprised with the decision after winning the toss because toss was a very crucial one. I might be thought after winning the toss, captain will be decided to bat first because it will be always difficult to chase the target under the lights. But something game plans have been might be different for the pen name captain. He have the confidence on the bowler. That's the reason he might be decided to bowl first in front of the great batting lineup because Amit Mayekar, as we know, he already know the conditions of this ground. Is having the reading capabilities of the batsman because all the fielders they are giving a good performance. The same team just 2 weeks back at the Harambal ground, the same team have won a big trophy and cash prize of rupees 1 lakh taluka level tournament. They have defeated. On behalf of SK Jogging Cricketers, I welcome Sri Shyam Sundar Pednekar, Daddy, here with us, a social worker, well-known businessman from Khorli Mapsa. I request the captain of Parse, Pedne, to speed up the proceedings. If any teammates have moved out of the ground, it's not our mistake. So I request the umpire to start the proceedings with the fielder available on the ground. And to bring to your notice that player who has moved out will have to face the test here. He have to face the alcohol test here. Once he enter the ground, he can't enter on the ground on his own. We are running short of time. Okay. And I kindly request the fielding side not to waste the time. Umpire also should keep a vigil on the time because it might be a foul play suspected by Fonda captain to waste the time to take the advantage of that floodlight. Two great opening pair. Captain at the other hand and Praveen was looking very good in the previous match. Played a fantastic inning of 50 runs. Praveen will going to start the proceeding from the far end. Right arm over the wicket to a very dangerous batsman from the Ponda side. Praveen is always known for his great hard-hitting batting side. So umpire, you get two officials, Naresh Parsekar and Sushant Salgaonkar at the square leg. Start with the proceeding, Praveen.
Full toss one, and that is big shot. Good one. Hits it beautifully over onto the long off region. It's one bounce into the fence and started with the full toss and punished that one beautifully shot at the extra cover region for a shot. And they are fighting with each other. Lot of spectators are arrived here to support their favorite teams, and as usual, both the teams have defeated both the teams in a comfortable manner. And started with the full toss that is punished beautifully over onto the longer of region by Praveen, and he's off the mark. Another full toss, this time nicely executed. Oh, it's a great save. My goodness. What a save you can see there from Noso. He is the longest, tallest man at the mid-wicket region. Certainly he saved 5 runs for his team, because Praveen at the other end was looking might be that will going to travel to the 6, and definitely this is the kind of save, this is the kind of fielding you have to give the effort in the outfield. And Noso, you also thought that the ball will going to travel into the fence with an ease, but after that it's a wonderful stop there from Noso by saving 7 runs for his team, and it's just a single on that. Good save there from Noso, who was the man of the match in the previous match. And same thing, same form is continuing in the fielding department as well. With those two couple of runs, with those two couple deliveries there from Pramil, score is 5. Good start from Ponda and Sarvesh. Captain is on strike. He just wanted to play that reverse swift shot ball. He just kept low. It's a good one. Good comeback from Praveen. It's a buy signal there from umpire Naresh Parsekar. So singles and in between whenever they are getting an opportunity to hit the ball. And Praveen is a very good consistent batsman, good striker of the ball. Short pitch, that will going to punish. No fielder there into the deep. This is not a kind of bowling attack you have to looking for a great batting lineup in front. You can see Penham team playing with 10 players. Might be disadvantage here for them. But definitely it's a very good shot from Praveen by hitting beautiful shot at the fine leg region. Good defensively shot at the mid of Gauresh, a young talent there from Penham side. It's definitely is a good fielder, good all-rounder, good bowling action. In the previous match he's bowled beautifully, given a very good start, and Praveen it just make a very good comeback. Good shot. There is no fielder into the mid-wicket region. Beautiful shot in the end there from Praveen. This is turning out to be a ए इन दोनों के बीच होगा। प्लीज दोनों टीमों कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। बारदेश ए बोडगेश्वर और पेरनेम ए ध्रुव, इन दोनों के बीच में इस मैच के बाद जो कि मैच होगा, प्लीज दोनों टीमों कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। change in the bowling action there from the far end. Gauresh Nagwekar will going to bowl the second over as a young talent there from Penham side. Is an emerging player throughout this season. Is a very consistent bowler. If you can see the economical average is just under 6 runs, and now it might be a very great test here for in front of the great batting lineup. Ponda, obviously known as favorite whenever they are playing under the Taluka level tournaments in Goa.
especially when they are playing against Penne as usual. Lot of spectators, because most of the times we have seen they used to play against Dhruva Parsem, and now it's time here for them to chase another time here for against Penne. Full toss one, but I think wrapped onto the pad and the finger goes up. The batsman has to depart. Great signal. You can see, I think it's straight onto the middle of the stump. That's the reason. It's a good signal there from umpire, and the captain is just there from Gaurish on a very first delivery, given a great breakthrough because they are desperately looking for the wickets, because the first over was a very expensive in which 4 boundaries have considered there from Praveen, who is at the other end. And another explosive batsman from the Ponda side is just walking towards the crease and will going to take the strike. First time there for Gaurish. This time, as usual, he's in a very great style. He started off the mark with a great six. To win the toss here for the captain of Penne, but that decision which has been decided to bowl first, we just have to wait and for a few minutes here whether it will going to get in favor of Penne or in favor of Ponda. But right now, Ponda, they are looking good. This time it's a good yorker, wrapped onto the pad, but I think slightly the impact is just outside leg. It's a leg signal there from umpire Sushant Salgaonkar. 1 run's going to add here and keep back here onto the Praveen. He is off the strike for a long time. Who is hitting a very good 3 boundaries in the previous over against Praveen. And now he will going to face a young talent there from the pen name, who Chandan is already get on a very first delivery with a great style. Welcomed him to Gaurish. Turning out to be a great over once again for Ponda 21. This is the quarterfinal of the today's day, first quarterfinal in which we will going to decide who will the first semi-final in this great trophy for SK Jogging. And chance of getting a catch behind the wicket. Babu is not going to miss that one. So second breakthrough here for Praveen, and he just missed that opportunity because he just wanted to hit. The ball is not well coming onto his bat. Bangladesh A, that is Bodgeshwar, and pen name A, Dhruv.
are requested to. So coming back into the game, Nitin. Yorker 1, good comeback. It's just slightly angling that delivery for the right-handers. The batsman, it's not very easy for the new batsman to come and settle because you are just tired, and Nitin is a very dangerous batsman as well. In the middle order, he just tired to face here against the pen name. Second over is in progress. Already 7 runs coming in this over so far. It's a good comeback from this young man. Another great one. Angling that delivery. Just 7 from it, even after getting a very big 6 in this over. But after that, it's a good comeback. In 5 deliveries, he had just given only 1 run. That means 2 overs completed. 21 for the loss of 2 wickets. Tournament 2017 on YouTube live with our Gaurav Saman with his cameraman. So he's always been, as usual, a very famous personality in Goa. Gaurav Saman is giving a live actions of this cricket tourney, and Nikhil Kamble with his cameraman. Mahesh Bhaidkar with a short arm delivery. The ball is just landing at the short fielding region. It's a one. And Nitin will going to come back into the game here. He have faced 2 deliveries but not able to ease off the strike. Is still some required to get a time here. It's a 1 run short, you can say. It's a penalty, 1 run penalty for that means score will come down to 21 only. Third over is in progress. Mahesh Bhaidkar, a high consistent profile bowler. We have used to see a consistent bowler there from Korgaon. He used to play here for the Palsem Youth. The same performer, same team which have won the great tournament at Harambol ground. Same cricket, same team here playing in this great trophy. Good Yorker 1. I think the ball is just making the height here because the ball is just missing that stump. That's the reason it's the leg by signal. You can see there from Naresh Parsikar with that single. He is still not able to get off the mark, but it's a leg by signal. But anyhow, the runs to come is very much important here for the Ponda team because they are glowing in a very great direction. Even after losing the toss, the captain might be decided they will not going to miss the match. Coming back here into the game, Mahesh Bhaidkar once again on his bowling mark. This time, little pace involved on his follow-through. We attempted to stop that ball. Ball is hitting on his pad and just traveling at the mid-on region. Only will going to 1 runs. This is a very good comeback. Even you see in the first over 14 runs in with 3 boundaries involved there from Praveen Naik. But after getting the wicket of Praveen Naik, the score are very hard to come for the Ponda side. The boundaries and 6 is set right up here for Ponda. 23. 23, I think it might be hits onto the bat and it's a finger should go up. Very good comeback there from Mahesh. Picked the important wicket for Nitin. Was not able to get the timing. He was to struggle here. But in the end, he just... bowlers. That's the reason the captain have the faith in their bowlers. That's why he have decided to bowl first
and their bowlers are coming into their faith, the confidence level which has been put there from the captain to the bowlers here for the pen name, and their bowlers doing exactly great job. Even after getting the 14 runs in the first over, Gauresh, even after getting the first 6 on a very first delivery, 5 deliveries, only single runs in that over, 7 runs conceded in that over, 2 important breakthrough he has given, and now Mahesh continuing the same thing, the same start which they have to capitalize on that. Left-handed batsman, what a great pace, 110 kilometer per hour. This is the average speed here for this young man. Mahesh Vaidkar used to play here for Pernam. Good comeback. You can see he just right onto the target because not allowing the batsman to free his arm. It might be a very difficult chance here for the Ponda because they have a good batting lineup. Still lot of batting side and much more depth in the batting. But still right now they are struggling. This time it's a good comeback, but I think he's not able to get the timing on that. And one of the great outfielder, Nauso, who was the same 5 runs in the very first over, and he has taken a beautiful catch. So the Pennam team, they are looking good now. They are giving a middle in breakthrough, 4 wickets down. Down, changing the commentary action. Our captain in the commentary, you can see as usual Praveen Kautankar here with us, Samir Pandey, Jay Bhosle and Ashok Ji Naik. Want to go? Over. Over. धन्यवाद नीलेश. कमलेश वेंगुर्लेकर कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. कमलेश वेंगुर्लेकर. ओवर पिच गेंद इस बार सुंदर शॉट, बिल्कुल हाफ वाली पर लेकर लंग ऑन बाउंड्री पर गेंद को खेला. थोड़ी सी डिलाई फील्डिंग में, लेकिन शायद दूसरा रन नहीं बनेगा. 1 रन से 7 से स्कोर आगे निकलता हुआ 24 रन 4 विकेट पर. अल्कोहोल टेस्ट साठी या ठिकाणी कमलेश वेंगुर्लेकर संपर्क साधायचा आहे. कमलेश वेंगुर्लेकर. शायद 4 अच्छे विकेट जो कि लेती हुई पेरनेम क्रिकेट टीम बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस मैच में. शॉर्ट पिच गेंद इस बार पुल करना चाहते थे, लेकिन शायद गेंद बल्ले पर लेने में असफल रहे. गेंद निकलती हुई विकेट के पर क्या बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से 24 रन स्कोरबोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर जो कि चलता हुआ. रितेश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, एक बार फिर से बढ़िया गेंद. बिल्कुल जो कि जिस तरह से 4 विकेट हस्तगत के, मेरे ख्याल से पेरने क्रिकेट टीम पूरे हौसले के साथ इस मैच में उत्साह के साथ बिल्कुल बढ़िया योगदान देते हुए. मालूम है ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल का है और शायद यहां पर जीतकर अपना सेमीफाइनल में स्थान पक्का करना पड़ेगा, और इसी के कारण इन दोनों के बीच में ये मैच बिल्कुल रोमांचकारी हो जाएगा. रितेश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. ओवर पिच गेंद इस बार गेंद को खेला लंगा बाउंड्री पर, यह मौका रहेगा फील्डर गेंद के नीचे, उसी के साथ और एक सफलता और एक धक्का लगता हुआ पोंडा क्रिकेट टीम को.
जिस टीम ने पहले मैच में अपने प्राथमिक मैच में 140 रन बनाए थे, वही टीम बिल्कुल संघर्ष करते हुए इस मैच में रनों के लिए तरसती हुई मैदान पर दिखा देती हुई, और इसका पूरा श्रेय देना पड़ेगा, फुल क्रेडिट देना पड़ेगा पेरनेम क्रिकेट टीम को, गेंदबाजों को, फील्डरों को। बढ़िया योगदान, खास करके 900 की तारीफ करनी पड़ेगी। अगले गेंद इसी बीच में शॉर्ट गेंद, इस बार बढ़िया शॉर्ट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, गेंद 6 रन के लिए इससे बारिका से बाहर। थोड़ी सी कमजोर गेंद मिली, शॉर्ट गेंद मिली, और स्क्वायर लेग बाउंड्री पर शानदार छक्का, 30 रन 5 विकेट के नुकसान पे। सुंदर शॉट, बिल्कुल बढ़िया शॉट, इस बार बॉलर के पास से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद। 1 रन फिर से बना दिया चंदन नायक। चंदन 2 छक्के की मदद से अपने व्यक्तिगत 15 रन पर बल्लेबाजी करते हुए खेल कुल समाप्त होता हुआ चौथे ओवर का। I welcome our dignitary Shri Dayanand Mandrekar on dais along with Shri Narayan Mandrekar. कमेंट्री बॉक्स मधून हार्दिक स्वागत। एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स, ये शानदार प्रकृत्या, जो कि दूसरा ऑल गोवा तालुका लेवल का ये टूर्नामेंट, डे नाइट का बिल्कुल क्रिकेट का महासंग्राम इस मैदान पर, और ये क्वार्टर फाइनल का पहला मैच। फुल टॉस गेंद, इस बार ताकत भरा शॉट ऑफसाइड पर, कवर पर बढ़िया फील्डिंग, गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन के साथ से दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने फासले बदले और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 31 रन 5 विकेट के नुकसान पे। एक सिरे से ये 2 आक्रामक बल्लेबाज मैदान पर पिछले मैच में 31 और 27 रन की बारी खेली थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़े बड़े शॉट लगाए थे, जो कि प्रवीण ने 50 रन योगदान दिया था, लेकिन उसके बाद से जो कि एक बड़ा टोटल बनाने में जिनका 2 बल्लेबाजों का हक था, हिस्सा था, वो 2 बल्लेबाज अभी भी मैदान पर। अमित स्ट्राइक पर, सुंदर शॉट इस बार, लेकिन उतनी दूर नहीं निकली गेंद, शायद जो कि उम्मीद थे, एक बिल्कुल शायद करीबी मामला, लेकिन अंपायर का सही फैसला, नकारा उस अपील को। बढ़िया फील्डिंग, जो कि लेकिन अपने वापस जो कि कदम खींच ले सुरक्षित अपने क्रीज में अमित ने। स्ट्राइक पर अमित, नॉन स्ट्राइकर इन पर चंदन। स्कोर टोटल 32 रन 5 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर जो कि चलता हुआ। 8 ओवर का निर्धारित मुकाबला, 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल श्री बोडगेश्वर मैदान पर एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स द्वारा आयोजित ये शानदार प्रतियोगिता, और दर्शकों की बहुत ही भारी संख्या में मौजूदगी, साथ साथ मान्यवर कक्षा में सम्माननीय दयानंद मांद्रेकर, जिनका आगमन इस प्रतियोगिता को और 4 चांद लगाता हुआ। अगले गेंद इसी बीच में ओवर पिच गेंद, सुंदर शॉट, बिल्कुल हाफ वाले पर लेकर, शायद प्रयास बहुत बढ़िया था, अगर लपकते तो शायद अब बिल्कुल, जबकि ये बेहतरीन कैच हो सकता था, लेकिन एक शानदार एफर्ट 1 रन स्कोर के खाते में और जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ से स्कोर निकलता हुआ 33, लॉस ऑफ 5 विकेट, 33 रन 5 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई पारसेम यूथ पेरनेम क्रिकेट टीम इस मैदान पर, शायद कप्तान ने बात की थी इसकी कि भाई हम 60-70 के आसपास रोक देंगे इस टीम को, बिल्कुल उसी कदम पर चलती दिखाई देती हुई पेरनेम क्रिकेट टीम। ओवर पिच गया, ये शॉट मिस टाइम कर बैठे, देखना होगा, और इसी के साथ और एक धक्का लगता हुआ चंदन, जो कि वापस 6ठे विकेट के रूप में। शायद फोंडा क्रिकेट टीम कुछ जो कि सवर नहीं रहे है मैदान पर। पिछले मैच में एक बड़ा टोटल 140 रन, लेकिन इस मैच में तरसती हुई
नए बल्लेबाज नीतीश मैदान पर। इस मैच के बाद मुकाबला बारदेस ए बोडगेश्वर और पेरनेम ए ध्रुव के बीच में। प्लीज दोनों टीमों के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला। इस बार कवर के क्षेत्र में 1 रन तो जरूर बनेगा स्कोर के खाते में। शायद एक बीच में साझेदारी छोटी सी बनानी पड़ेगी, एक सूझबूझ की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अंतिम ओवर का इंतजार करना पड़ेगा शायद 2-3 बड़े शॉट के लिए। और 70-75 का टोटल 8 ओवर का एक अच्छा टोटल रहेगा पेरनेम क्रिकेट टीम के सामने, लेकिन वो रन बनाने पड़ेंगे। 6 विकेट अब तक गिरते हुए नए बल्लेबाज नीतीश मैदान पर। अच्छी गेंद, इस बार फिर से कलाई का उपयोग किया, हल्के से मोड़ आए इस बार स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। शॉट फाइन लेके फील्डर आते, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। 1 रन के स्कोर के साथ से खेल कुल समाप्त होता हुआ, जो कि 5 ओवर का। who can't be present here for all 3 days here. You can enjoy these live matches on YouTube, and you have to go through tenniscricket.in. That is the website, tenniscricket.in. 3-day live matches on YouTube. Thank you. 7 रन प्रति ओवर बनाती हुई फोंडा क्रिकेट टीम। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 35 रन 6 विकेट पर। और स्ट्राइक एंड पर अब अमित सामना करते हुए। ओवर पिच गेंद, शायद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक बड़ा शॉट, बिल्कुल गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से, काफी लंबा छक्का 6 रन के लिए। बारे में एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, शायद अंतिम जो कि लास्ट तक बल्लेबाजी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है फोंडा क्रिकेट टीम के लिए। फुल टॉस गेंद, फिर से क्या शायद बहुत बेहतरीन शॉट, फिर से जो कि एक कमजोर गेंद, फिर से लगातार बैक टू बैक का एक बड़ा शॉट, गेंद जो कि 6 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ। अशोक का यहाँ पर हमने देखा थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई पारी। पहला मुकाबला 140 रनों का, दूसरा मुकाबला यहाँ पर लगभग 36 रन के ऊपर 6 विकेट गंवा चुकी थी फोंडा की टीम। लेकिन अगर बात की जाए ना अमित की, तो इसने सांगेम के उस प्रतियोगिता में डिंगडोंग के बड़े बड़े गेंदबाजों को 5 गेंदों में 5 छक्के लगाई। एक खतरनाक बल्लेबाज है, इसलिए तो मैं अक्सर कहा करता हूँ वो है बल्लेबाज सबसे बड़ा जो मैदान के भीतर अपने टीम के लिए आखिर तक है खड़ा। बिल्कुल सही बात जय भोसले आपने कही। संदेश पार्थे को बिल्कुल जो कि लाजवाब एक के बाद एक छक्के लगाए थे सांगेम प्रीमियर लीग में, और 35 रन पर जो कि पिछले ओवर की समाप्ति पर रुकी थी बिल्कुल फोंडा क्रिकेट टीम, लेकिन 2 छक्के लगाए, बहुत ही शानदार 47 रन। छक्कों की हैट्रिक मिड विकेट बाउंड्री पर और एक छक्का, और छक्कों की हैट्रिक मैदान पर, लगातार 3 बड़े शॉट। इसलिए तो अशोक कहा जाता है अनिश्चितताओं से भरा खेल है क्रिकेट। का 60-65 के आसपास बिल्कुल जो कि सीमित होगी फोंडा क्रिकेट टीम, लेकिन अब लग रहा है भाई शायद 75 सामने 80 का टोटल महंगे साबित होते हुए अपने
शायद गेंदबाजी का छोर बदलते हुए, जो कि शुरू में ओवर द विकेट, अब राउंड विकेट दिखाई देते हुए अमित के लिए। बड़ा शॉट फिर से बैक टू बैक, और एक बड़ा शॉट है स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। अंपायर का इशारा होना बाकी। शायद क्या जय भोसले क्या कहेंगे इस बल्लेबाजी के बारे में? सांगेम का रिप्ले है, मैं तो कहूंगा ये तो सांगेम का रिप्ले। लगातार 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के, अगर 5वां लगा देता है ना तो वो रिकॉर्ड बन जाएगा। 6 लगाएगा तो ये टेनिस बॉल क्रिकेट में यहाँ पर तो मैं कहूंगा कृष्णा सातपुते के बराबर हो जाएगा भाई। बिल्कुल। छह विकेट के नुकसान पे नितेश काफी महंगे साबित होते हुए एक बार फिर से लेफ्ट आर्म अपने जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अमित के लिए। फुल टॉस गेंद फिर से उड़ाया, 5वां छक्का है। 6 रन के लिए। बिल्कुल अंपायर का इशारा, गेंद से मार्का से बाहर। अशोक, हम इन खिलाड़ियों की यूं ही तारीफ नहीं करते, हम इनको जानते हैं, बड़े बड़े प्रतियोगिता में देखते हैं, इनके बलबूते के ऊपर टीम कहां से कहां पहुंच जाते हैं आपने देखा है। ऐसा लग रहा था 50 के अंदर सिमट जाएगी। अब तो मैं यहां से कहना चाहूँ और एक बात शायद जय भोसले मेरे मन में शंका उत्पन्न होती हुई, भाई जो रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कि युवराज सिंह ने किया है 6 छक्के का, हर्षल गिब्स ने किया है 6 छक्के का, रवि शास्त्री ने किया है 6 छक्के का, शायद ये मौका अमित के लिए। बस दर्शकों की निगाह की भाई जो कि 6 गेंदों में 6 छक्के देखने को मिलते हैं या नहीं। और टेनिस बॉल में 5 छक्कों का रिकॉर्ड है प्रवीण के ऊपर, 5 लगा चुके हैं रिकॉर्ड के बराबर। वो तोड़ने के लिए 1 छक्का चाहिए यहाँ पर। शायद ये गेंद बिल्कुल बढ़िया गेंद, थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी नितेश ने। भाई लग रहा था थोड़ी शंका मन में, अमित भी उम्मीद कर रहे थे भाई ये अतिरिक्त गेंद के लिए। अशोक नाइक, यहाँ पर जब सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न को जब छक्का लगाया था ना, तब शेन वॉर्न नहीं सोए थे रात भर। ये तो छक्के इस तरह से लगे इस मैदान के ऊपर, ये 1 साल तक नहीं सोएगा ना। बिल्कुल नितेश नहीं सोएंगे भाई। और एक बात, जबकि 35 रन थे जो कि स्कोर बोर्ड पर बिल्कुल 6 विकेट के नुकसान पे 60 का टोटल मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब स्कोर बोर्ड पर 65 रन, 6 ओवर का खेल समाप्त, अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी। और ले चलते फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में हमारे सहयोगी प्रवीण कौटनकर के साथ अगले 2 ओवर के लिए। अशोक, मैं सुबह से पहले मुकाबले से कहता आ रहा हूँ, क्योंकि तूफानों में पत्तों का इमला नहीं बनता और रोने से नसीब नहीं बदलता। अगर एक हार से कोई फकीर नहीं बनता तो एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो निश्चित रूप से शानदार बल्लेबाजी, जानदार और आक्रामक बल्लेबाजी। यहाँ पर 5 छक्के टेनिस बॉल में आसान नहीं है प्रवीण। हमारे जय और अशोक, बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट। और जो कमी थी इस मुकाबले में, चंदन और प्रवीण के बल्ले ने जो रन नहीं बनाए वो रन यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैदान खूबसूरत माहौल, काफी सारे दर्शकों की उपस्थिति श्रीदेव बोडगेश्वर के इस मैदान पर, और अतिथि कक्ष में सम्माननीय दयानंद जी मांजरेकर जिनकी उपस्थिति। मुकाबला बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पर एक मौका था, दौड़ पड़े अमित, स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश, और बिल्कुल इस कोशिश में मात्र कामयाब होते हुए 1 रन के साथ छोर बदला, टोटल मात्र आगे बढ़ी और इस 1 रन से टोटल पहुंचे 66 रन जो कि स्कोर के खाते में। बिल्कुल इस ओवर के बाद और 1 ओवर का खेल बाकी, यानी यह टोटल निश्चित रूप से 80 के आगे जाएगी। जब तक मैदान के भीतर अमित का बल्ला है, रनों पर रोक लगाना मुश्किल होगा यहां पर पेड़ने क्रिकेट टीम के लिए। इस बार खड़े खड़े रहने के, बिल्कुल स्टंपों की जड़ में खड़े रहकर बल्लेबाजी करने की कोशिश। अमित टेनिस बॉल क्रिकेट का गोवा राज्य का एक बड़ा नाम, कुछ ऐसे नाम जो कि गोवा राज्य में टेनिस बॉल क्रिकेट में लिए जाते हैं, उस नाम में अमित का एक नाम जो कि आता है निश्चित रूप से, वो नाम इस बोडगेश्वर के मैदान के ऊपर। इस बार फिर एक बार बड़ा शॉट, गेंद मिड विकेट से बाहर, 6 रन।
बिल्कुल मुकाबला एक रोमांचक स्थिति में और रनों की बारिश जो कि मैदान के भीतर आड़े बल्ले से कैलाश को अलग क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात जब तक गेंद को फील्ड करता। एक रन के साथ शोर बिल्कुल बदलते हुए दोनों बल्लेबाज और इस एक रन से टोटल आगे बढ़ी 73 रन जो कि स्कोर के खाते में। बिल्कुल नीलेश जी स्कोरिंग काउंटिंग की अहम जिम्मेदारी इस मुकाबले के दौरान बिल्कुल एक साल के बाद उनके साथ बैठकर कमेंट्री करने का मौका, पिछले साल मैंने और जय भोसले ने इस प्रतियोगिता में कमेंट्री की थी और इस साल फिर एक बार वो मौका। हम तहे दिल से शुक्रगुजार एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स की पूरी टीम के। उंगली ऊपर और एक बल्लेबाज जो कि खेमे में वापस। बिल्कुल आखिरी 6 गेंदों का खेल जो कि बाकी। आखिरी 6 गेंदों का खेल जो कि मैदान के भीतर बाकी और अमित का बल्ला फिर एक बार स्ट्राइक एंड पर दिखाई देता हुआ। गौरीश एक उभरते हुए गेंदबाज पेरनेम तालुके के एक बड़े बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी, मेडन डिलीवरी के साथ गेंदबाजी की शुरुआत, एक बढ़िया शुरुआत और 73 रन जो कि स्कोर के खाते में दिखाई देते हुए। चौके और छक्के के साथ शुरुआत हुई थी प्रवीण के बल्ले से, बीच में रन नहीं बने और आखिरकार फिर एक बार अमित जो कि अपने टीम का संकट मोचक बोडगेश्वर के इस मैदान पर दिखाई देता हुआ। राइट आर्म राउंड द विकेट उठा दिया, गेंद बिल्कुल हवा में, मौका लेकिन गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। दौरान सम्माननीय समीर जी मांद्रेकर जिनकी उपस्थिति जो कि फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और कुछ अपील, शायद क्लीन बोल्ड हुए यहां पर अमित, लेकिन अमित को जो काम करना था पोंडा क्रिकेट टीम के लिए वो बल्लेबाजी बोडगेश्वर के इस मैदान के ऊपर अमित साबित करते हुए एक बड़ी पारी और रन संख्या जो कि दिखाई देती हुई 79 रन जो कि स्कोर के खाते में। बिल्कुल अमित ने अपना काम किया, 45 रन 45 जिसमें 7 छक्कों की एक बड़ी पारी जो कि फोंडा क्रिकेट टीम के लिए एक फायदेमंद पारी, एक संकट मोचक पारी जो कि इस मैदान के भीतर दिखाई दी और गौरीश फिर एक बार एक अच्छे गेंदबाज जो कि साबित होते हुए मैदान के भीतर इस बार बिल्कुल जड़ में डाली, एक नफीतुली गेंदबाजी। आखिरी इस ओवर में गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग यहां पर पेड़ने क्रिकेट टीम के कप्तान आमिर की और इस 1 रन से टोटल मात्र आगे बढ़ी।
80 रन जो कि स्कोर के खाते में एक बड़ा टोटल निश्चित रूप से यहाँ पर दिखाई देता हुआ। शाम के वक्त पेडणे क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता, लेकिन बहुत अचंभित किया सभी खिलाड़ियों को, सभी दर्शकों को। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला था उनका, और इस मुकाबले में एक और छक्का जो कि आखिरी गेंद का खेल बाकी 86 रन जो कि स्कोर के खाते में। गौरेश दौड़ पड़े, राइटम राउंड दी विकेट, यह गेंद उठाया, बिल्कुल गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी तैनात, पहला रन पूरा किया और एक बढ़िया कैच। लेकिन रन संख्या बिल्कुल बढ़िया स्कोर बोर्ड पे दिखाई। Please, please.
No. EB. Captain of pen name A, Drew. You are requested to report here on the dais. I request umpire to continue the match. धन्यवाद सभी दर्शकों का। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में मैं जय भोसले, मेरे सहयोगी कमेंटेटर अशोक नाइक, समीर पांडरे, नीलेश पारसेकर और प्रवीण कौटनकर के साथ तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। ले चलते हैं मैदान के भीतर एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स आयोजित इस श्री दयानंद मांद्रेकर चषक सेकंड ऑल गोवा तालुका लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट में। इस प्रतियोगिता का आज का पहला दिन और पहले दिन का ये पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। जीत की सुगंध यहां पर किस टीम को सूंघने को मिलेगी ये तो आने वाला समय करेगा तय। फिलहाल देखने वाली बात होगी तो मैदान के भीतर इस तरह से बल्लेबाजी। पहले मुकाबले की अगर बात की जाए, निर्धारित 8 ओवर में 140 रन बनाए थे पोंडा टीम ने। उसका पीछा करते हुए बहादुर टीम ज्यादा रन बना नहीं पाई। दूसरा मुकाबला रहा 75 रनों का, 76 रनों का। उसका आसानी से पीछा किया पेरनेम टीम ने और उसी नक्शे कदम के ऊपर ये मुकाबला, यानी कि 35 रन के ऊपर 6 विकेट 5 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन आखिर के 3 ओवर में क्या गजब की पारी के लिए अमित ने एक खिलाड़ी सेना बराबर मानव यहां पर 7 छक्के लगाए, 45 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और अपने टीम को एक सम्मानजनक चुनौती भरी टोटल के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना है उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पेरनेम के धुरंधर तो मैदान में भीतर जाएंगे, क्योंकि जानते हैं इस टीम के गेंदबाजों को, क्योंकि आमने सामने बहुत बार भिड़ंत हो चुके हैं गोवन खिलाड़ियों के बीच में। और इस बोडकेश्वर के इस मैदान के ऊपर उमड़ा हुआ ये रण संग्राम श्री दयानंद मांद्रेकर ट्रॉफी का ये पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के भीतर अमोल और 900। पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच जिस खिलाड़ी ने चटकाया था वो 900 नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर है अमोल। 37 रनों की लाजवाब पारी खेली थी पिछले मुकाबले में। और गेंदबाजी के लिए देश भाटिका पहले ओवर की पहली गेंद लेकर
फील्डिंग में सजावट करनी जा रही है। स्क्रीन के नजदीक जो बच्चे दौड़ रहे, कृपया रिक्वेस्ट है वहां पर कोई हलचल ना करे। पहली ओवर की पहली गेंद, इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, कैच का मौका, विकेट कीपर पहुंचे, खुद गेंदबाज ने इस कैच को लपका। कोई आवाज नहीं विकेट कीपर के बाद तो मुंह से कोई आवाज नहीं थी बाकी खिलाड़ियों से, लेकिन बाल बाल बचे यहां पर, वरना कैच तो छूटता, इंजरी का सामना करना पड़ता। फिलहाल तो पहली गेंद के ऊपर चलता कर दिया, ज्यादा महंगा नहीं पड़ा ये विकेट। and chairperson of Goa IDC. बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा, बल्लेबाजों ने जो काम किया है उसके ऊपर पानी ना फेरा जाए, यही सोचते हुए गेंदबाजी करे दहेश वाडेकर। और दहेश की बात की जाए ना तो शानदार गेंदबाजी, गोवा का जब जब टेनिस बॉल में नाम लिया जाता है, इस खिलाड़ी का नाम बहुत ही बढ़िया सम्मान के साथ लिया जाता है। अब 900, अच्छी गेंद, सम्मान दिया, ऑनर ऑफ द स्टॉक, हाना की परिस्थिति, लेकिन रन लेने से आइन मौके के ऊपर रोक लिया अपने कदम, आहिस्ते कदम, क्योंकि जानते हैं दूध पीने से जब मुंह जलता है तो ताक भी साग साग के पिया जाता है, और यही यहां पर, क्योंकि पहले गेंद के ऊपर विकेट चटकाया है दहेश ने। इस बार खेलना चाहते थे, कहीं गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर, पॉइंट और गली के बीच में, खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड करे, एक रन के साथ छोर बदला, रन संख्या को शुरुआत कर दी है। मैच में अगर रोमांच आना है तो 900 को मैदान के ऊपर टिके रहना है, पेरनेम के दृष्टिकोण से देखा जाए। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में टिकेलो महोदय साहब यहां पर आ चुके हैं, उनका हमारे कमेंट्री बॉक्स से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ बैठे इस प्रतियोगिता के सर्वे सर्वा, जिनके नाम से इस प्रतियोगिता का नाम दिया है, दयानंद जी मांद्रेकर साहब। फिलहाल गेंदबाजी के लिए दहेश वाडेकर, उल्टा डिलीवरी, इस बार खेला कलाई के सारे, गेंद आई सीमा रेखा बाद, दर्शक बनकर आए खिलाड़ी, 6 रन। लेग स्टंप के ऊपर थी, पैरों के ऊपर थी, और ऐसी गेंदें तो गोवन खिलाड़ी चूकते नहीं, क्योंकि हमने देखा है लेग स्टंप के ऊपर आप भटके तो आपको पड़ेंगे फटके, और यही तो अमित ने किया, और उसके बाद अब यही खिलाड़ी कर रहा है। निश्चित रूप से जाते जाते यहां पर छक्का लगा दिया है अंबाजी ने काफी प्रभावित कर दिया इस साल में। हरमल में भी शानदार बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने। जब जब बड़ी प्रतियोगिता होती है ना, कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए जाते हैं बड़े आदर से, चाहे वो राजू दाभोलकर हो, चाहे वो राम नागवेकर हो, चाहे वो संजय नागवेकर हो, चाहे वो भालो हो, समीर ठाकुर हो, संदेश ठाकुर हो, रोहन साड़गांवकर हो, सनम साड़गांवकर हो, मनोज नार्वेकर हो, बद्री हो या कादरी, 2 हंसों का जोड़ा, इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। अब यहां पर इस सूची में अंबाजी आ चुके हैं, अमित आ चुके हैं। पहले मुकाबले में जो कि प्रवीण ने शानदार पारी के लिए 50 रनों की इस प्रतियोगिता का पहला अर्धशतक लगाया, शानदार 7 छक्के लगाए उस मैदान के भीतर। गेंद गुम हो चुकी है, और हमारे जो बॉल बॉयज है उनसे रिक्वेस्ट है कृपया गेंद के ऊपर ध्यान दीजिए। गेंद की वापसी करें, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इसके जॉगिंग क्रिकेटर्स के सभी सदस्यों का, जिन्होंने दोबारा हमें यहां पर मौका दिया है कमेंट्री करने के लिए, और उनके बदौलत आपके सामने इस
मुकाबलों का हम आंखों देखा हाल कानों तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी। और इस साल इस प्रतियोगिता को लगभग 234 देशों में देखा जाएगा, जो कि लाइव यहां पर दिखाए जा रहे tenniscricket.in के माध्यम से हमारे मित्र गौरव और निखिल के द्वारा। अच्छी गेंद, सम्मान दिया, ऑनर ऑफ द स्टॉक विद अलॉन्ग द कारपेट के साथ, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। और यही अच्छी गेंदबाज की निशानी हो जाती है, जब बड़ा शॉट आपको लगता है ना, तो उसके बाद आप मेडन डिलीवरी जब डालते हैं तो गेंदबाजी वापसी हो जाती है। शॉट डिलीवरी तेज रफ्तार के साथ, चेंज ऑफ स्पेस इसे कहा जाता है। ऑफ स्टंप के ऊपर थी गेंद और मुकम्मल पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जो कि 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर 87 रनों के जवाब में। रनों का जवाब देना पहले ओवर की समाप्ति के बाद। पहले विकेट का पतन, रन संख्या मात्र यहां पर 7 रन, यानी कि अब 80 रनों की। Captain of Bodgeshwar, that is Bardeze, is requested to report in the commentator box for alcohol test. Captain of Bodgeshwar, please. गेंदबाजी में पहला बदलाव, कृपेश के हाथ में गेंदबाजी की बागडोर। कृपेश जो शानदार गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, और हमने इसकी प्रतियोगिता में इसके पहले भी देखे हैं। बेस्ट बॉलर का किताब जिस खिलाड़ी ने अपने पॉकेट में, चाहे वो घूमते रहते, वो किताब लेकर वो कृपेश यहां पर गेंदबाजी के लिए और सामना करने के लिए तैयार। स्ट्राइक पे 900, पिछले मुकाबले का हीरो देखता यहां पर भी हीरोपंती दिखाता है नहीं। अच्छी गेंद, इस बार खेला, कैच का मौका, गेंद के नीचे विकेट कीपर, बड़ी मछली जाल में, दूसरे विकेट का हो चुका है पतन यहां पर प्रारंभिक जोड़ी खेमे में। का हीरो आज जीरो, आज का जीरो कल हीरो। हम पहले देखा करते थे विराट कोहली की बल्लेबाजी, लोग कहते थे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देगा ये लड़का, लेकिन अभी क्या नजर लग गई इनकी बल्लेबाजी को, और आरसीबी हारती जा रही, इनके बल्ले से रन भी नहीं बनते हैं। तो दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार को देखिए, 10 मुकाबलों में 21 विकेट चटका लिया है। एक धुरंधर है मैदान के भीतर, गेंदबाजी के लिए जाना जाने वाला खिलाड़ी जो कृपेश, और देश भाटीकर की तो क्या कहने, आज मिट्टी चोगे तो सोना निकलेगा भाई। कृपेश की गेंद बल्ले को लगी जरूर, आना की परिस्थिति, खिलाड़ी वहां पर तैनात, रन लेने की शंका भी यहां पर समाप्त होती हुई। कृपेश फिर एक बार निकले गेंदबाजी के लिए, इस बीच पटकी हुई गेंद, छेड़खानी करने की कोशिश, बाल बची, गेंद चली गई विकेट कीपर का हाथ में, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर चली गई, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। उस छक्का पहले ओवर में एक छक्का लगा था, लेकिन प्रारंभिक जोड़ी यहां पर आउट होने के बाद एक रीढ़ की हड्डी टूट जाने के बराबर थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ बल्ला दिखाई दे रहा है। अब पलड़ा भारी हो चुका है यहां पर पोंडा टीम का, गणपति वॉरियर्स के नाम से खेलते हैं सभी खिलाड़ी। अच्छी गेंद बैकफुट पर चले गए, हल्के हाथों से डिफेंसिव स्ट्रोक खेल दिया, 1 रन के लिए अंपायर के पास जब तक खिलाड़ी जाए, और तब तक 1 रन के साथ चोर बदला। इस 1 रन के साथ काफी देर के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर हलचल, 8 रन
स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर सस्ते में लिपटी प्रारंभिक जोड़ी और उसके बाद यहां पर जिस तरह की शुरुआत होनी चाहिए थी वो तो नहीं मिली, लेकिन निश्चित रूप से वो बल्लेबाज है सबसे बड़ा जो जीत के लिए मैदान के भीतर आखिरी ओवर तक है खड़ा और लड़ना यहां पर आदत डालनी चाहिए। आप जब लड़ोगे मैदान के भीतर तभी आपको जीत की सुगंध आने लगेगी। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करेंगे कृपेश, रितेश जो कि बल्लेबाज की हैसियत से अच्छी गेंद हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया। यहां पर पॉइंट और गली के बीच में से खिलाड़ी जब तक आए उठाए थ्रो करे तब तक 1 ही रन के ऊपर संतुष्टि। 1 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कुछ फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं इक्के दुक्के के साथ, क्योंकि विशाल टोटल यहां पर जो बनाया है, अगर यहां पर दबाव डालना है गेंदबाज के ऊपर शॉट खेलने ही पड़ेंगे, मजबूरी आपको बना देगी बड़ा शॉट खेलना। कृपेश तेज रफ्तार के साथ, ओहो इस बार लेग स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई, लेकिन वाइड का इशारा था अंपायर का, थोड़ी सी बाहर थी लेग स्टंप के। अतिरिक्त रन के बदौलत काफी देर के बाद डबल फिगर में स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर 87 रनों के जवाब में। कृपेश तेज रफ्तार के साथ लगभग 10-15 कदमों का रनअप है रोड एंड की तरफ से, जो कि गेंदबाजी करने के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार खेला। निश्चित रूप से 1 ही रन मिलेगा वहां पर, क्योंकि उतना तेज नहीं है। अगर आपको बड़े रन चाहिए तो आपको छक्के चौके लगाने पड़ेंगे और इसके लिए आपको बल्लेबाज को गेंदबाज के ऊपर होना पड़ेगा हावी। दूसरा ओवर हो चुका है समाप्त और 2 ओवरों का खेल समाप्त 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। I request the umpire to please stop the proceedings. Rajaram. थोड़ी देर के लिए मुकाबला रुका दिया जाएगा, क्योंकि हमारे जो गेस्ट यहां पर आ चुके हैं, खिलाड़ियों दोनों टीमों के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है लाइनअप के लिए मैदान के भीतर जाइए प्लीज। सगळ्यांक येवकार। थोड्या वेळा खातीर पेडणे आनी फोंड्या हांच्या मदीं सुरू आशिल्लो वो सामनो जो आसा, खेळ जो आसा, थोड्या वेळा खातीर स्टॉप जाल्लो आसा, कित्याक आमी आतां ह्या टुर्नामेंटाच्या ऑफिशियल उक्तावण करता। SK जॉगिंग क्रिकेटर्स काणकाबांद हाणें सेगीत 2ऱ्या वर्सा अखिल गोंय डे एंड नायट टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटाचे हांगा आयोजन केल्लें आसा। 8 ओव्हरीचो टुर्नामेंट आसा आनी श्री दयानंद मांद्रेकर चषक ह्या नांवान हो टुर्नामेंट सेगीत 2ऱ्या वर्सा SK जॉगिंग क्रिकेटर्साच्या वतीन हांगा आयोजीत जाता। सगळ्यान पयलीं महेश कोरगांवकर हांच्या नेतृत्वा सकयल सेगीत 2ऱ्या वर्सा खूब सक्सेसफुली आयोजनाक कसलीच त्रुटी नासतना हो टुर्नामेंट हांगा आयोजीत जाता। ह्या खातीर पयल्यान पयले आमी श्री महेश कोरगांवकर आनी तांच्या सगळ्या सांगात्याच्या नेटान टाळयो मारून अभिनंदन करुया। तशेंच सेगीत 2ऱ्या वर्सा श्री दयानंद मांद्रेकर हांणी हो टुर्नामेंट संपूर्ण सगळ्या दृश्टीन स्पॉन्सर केल्या बद्दल तांचे बी आमी नेटान टाळयो मारून अभिनंदन करुया। आनी आतां आमी कांय खिणां भितर ऑफिशियल उक्तावणाक सुरवात करता। हांव सगळ्यान पयलीं मागता SK जॉगिंग क्रिकेटर्सचे सर्वा जो सूत्रधार श्री महेश कोरगांवकर हांचे कडेन तांणी सगळ्यान पयलीं आयच्या उक्तावण सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे गोवा IDCचे चेअरमॅन तशेंच हळदोना मतदारसंघाचे माननीय आमदार श्री ग्लेन टिकलो हांकां सगळ्यांच्या वतीन पुष्पगुच्छ दिवन तांचे स्वागत करचे। तशेंच गोंय राज्याचे माजी कला
आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री तसेच माजी आमदार शिवोली मतदारसंघाचे आणि या टुर्नामेंटाचे स्पॉन्सरर माननीय श्री दयानंद मांद्रेकर हांचे बी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन पुष्पगुच्छ भेटून तांचे स्वागत करचे. तसेच उद्योजक श्री नारायण मांद्रेकर हांचे बी आम्ही स्वागत करूया पुष्पगुच्छ भेटून. आताच नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष म्हापसा नगरपालिकेचे श्री रोहन कवळेकर हांचे हांगा आगमन जाल्लें आसा. सगळ्यांच्या वतीन तांकां विनंती करता तांणी माचयेर येवन बसका घेवची आनी तांचे बी आमी सगळ्यांच्या वतीन पुष्पगुच्छ भेटून नगराध्यक्ष म्हणून तांकां बरी कामगिरी तांचे कडल्यान जावची म्हणून शुभेच्छा दिवया. नेटान टाळयो मारून तांचे स्वागत करूया. तशेंच आमच्या मदीं आसा श्री समीर मांद्रेकर. शौर्य श्री समीर मांद्रेकर हांचे स्वागत करता. धन्यवाद. आणि फुडल्या सुवातेर मागता हळदोना मतदारसंघाचे आमदार आणि या टुर्नामेंटाच्या उक्तावण सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे श्री ग्लेन टिकलो हांचे कडेन तांणी आमकां सगळ्यांक 2 उतरां सांगची. सगळ्यांक देवबरी सांज. गुड इवनिंग वन एंड ऑल. आयज ह्या ब्युटिफूल टुर्नामेंटाक आनी हाच्या इनॉग्रेशनाक SK जॉगिंग क्रिकेटर्स तांच्यांनी हो टुर्नामेंट आयोजीत केलो आसा. आनी हो टुर्नामेंट फुडें वचपाक आमचे पयलींचे मिनिस्टर आनी एक्स MLA श्री दयानंद मांद्रेकर तांणी टुर्नामेंट ताजो टुर्नामेंट जावन आसो हो 2nd year इन सक्सेशन ऑल गोवा लेवल तालुका. एंड आमचे मदें आसा आमचे नवीन म्हापसा म्युनिसिपलीचे चेअरपर्सन बाब रोहन. तशेंच आमचे मेन ऑर्गनायझर आनी हो टुर्नामेंट सक्सेसफूल जावपाक आमचो बाब महेश कोरगांवकर. तशेंच आमचे मित्र समीर मांद्रेकर, नारायण मांद्रेकर, एर मनीस आनी सगळे तुमी मोगल भयण भावनू आनी आमचे सगळे क्रिकेट फॅन. आयज हो जागो हो एक एकदम फेमस प्लेग्राउंड जाल्लो आसा. आनी हो थोड्याच वेळान हांव हांगा 2nd time हांगा आयल्लो आसा. लास्ट टायम एक बरो टुर्नामेंट जाल्लो नेवर गिव अप बॉयज. हांव फायनलीक आसलो हांगा. तशेंच आयज आमचे महेश कोरगांवकरान आयज आमकां उक्तावण करपाक आयज म्हाका आपयल्लो आसा हांगा. आनी हो टुर्नामेंट जावन आसा 2nd year इन सक्सेस. आनी टुर्नामेंट करूंक आमकां तें सोंपें दिसता पूण हातूंत भरपूर काम आसा. ऑर्गनायझेशन स्कील आसपाक जाय आनी तें बाब महेशान आपले मेंबरांक घेवन हो टुर्नामेंट आयज पयलो दीस आसा. आनी टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचें एक आसा पद्दत पूण फायनान्स करपाचें तें चड इम्पॉर्टंट आसता. आनी हांगा आमचे पयलींचे कलीग आतांचे कलीग बरो मनीस बाब दयानंद मांद्रेकरान हो टुर्नामेंट आयज स्पॉन्सर केलो आसा. आनी हाकोन येता म्हाका ताणें डेट फर्स्ट प्रायज दवरलो आसा आनी 2nd prize 75,000. सो पयशे मनी नॉट एवरीथींग बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज अ स्पोर्टिंग स्पिरीट. आनी हांगा म्हाका आयकोन येता की ऑलमोस्ट 16 teams आर इनवायटीड. आनी म्हाका दिसता टुर्नामेंट बरो टुर्नामेंट जातलो. आमचे आयज एम्पायर आसा आनी कॉमेंटेटर्स आसा आमचे प्रोफेशनल. एका सायडीन आमचे IPL चलता त्या वटेन बरी गेमी चलता. आनी तशेंच ह्या वटेन आयज आमचे SK जॉगिंग क्रिकेटर्स स्पॉन्सर्ड बाय श्री दयानंद मांद्रेकर. आयज आमी बरे टुर्नामेंट आयज जे शहरान आयज आमी म्हाका पळोवंक मेळटा. आय विश ऑल द टीम्स वेरी बेस्ट ऑल द 16 teams. तशेंच आमचे ऑर्गनायझर्स बाब महेश फॉर ऑर्गनायज दीस ब्युटिफूल टुर्नामेंट. आनी मोर ओवर हांव मागता देवा कडेन की आमचो बाब दयानंद मांद्रेकर ताणें देवान ताका बरें आरोग्य दिवचें. एक आमचो बरो लिडर आसा. तें बरें इतलीं वर्सां राजकारण आसा फुडें आसतलो. तशेंच आमचे बाब समीर ताणें बरें काम केल्लें आसा. बरें सोशल वर्क केल्लें आसा. एंड दीस इज पार्ट ऑफ द सोशल वर्क वे आवर यूथ इज एनकरेज टू बी इन्वॉल्वड इन स्पोर्ट्स. हांव सदांच म्हणटा स्पोर्ट्स इज वन very important factor in our lives.
आमी आमचे स्पोर्ट्स घेवन बरें हेल्थ उरल्या आमकां बरें आरोग्य बरें हेल्थ आनी बरें दुयेंसां पयस उरता. So I wish all the teams very best and especially the winners, runners up and all the participants and especially Bab Dhanan Mandrekar and our organizer Mahesh. Thank you very much. God bless. Thank you. देव बरें करूं सर. सरान आपल्या मार्गदर्शनांतल्यान ह्या स्पोर्टिंग स्पिरिटांतल्यानूच आमकां बरें आरोग्य मेळटलें हाच्या संदर्भान आमकां मौलीक अशें मार्गदर्शन केल्लें आसा. आनी ह्या टुर्नामेंटाच्या आयोजनान कसलीच त्रुटी ना, कसलीच कमी ना. बऱ्यांतलो बरो टुर्नामेंट आमकां हांगा अनुभवपाक मेळटा हाचोय तांणी मुजरत उल्लेख केलो. खऱ्यांनीच बरी प्रकाश योजना, बरो ग्रावंड, प्रेक्षकां खातीर प्लेयर्सां खातीर बरी वेवस्था, खंयच नांव दवरपाक जागो ना. आनी मुख्य म्हणजे जय भोसले आनी ताचे वांगडी खूब दर्जेदार अशी कॉमेंट्री आमकां सगळ्याक आयकुपाक मेळटा. आनी एकंदर खऱ्यांनीच ऑल रावंड बेस्ट परफॉर्मन्स आशिल्लो असो टुर्नामेंट हो. IPLच्या फाटल्यान म्हाका दिसता आमी ह्याच टेनीस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटाचें नांव घेवपाक जाय. परत एकदां नेटान टाळयो जावनी ह्या ऑर्गनायझरा खातीर आनी श्री दयानंद मांद्रेकर हांच्या खातीर. तेन्ना आमी फुडल्या सुवातेर ऑफिशियली ग्रावंडार वचून ह्या टुर्नामेंटाचें उक्तावण करुया. प्लेयरांचें इंट्रोडक्शन घेवन हांव मागतां आयच्या टुर्नामेंटाच्या उक्तावण सुवाळ्याच्या मुखेल सोयऱ्या लागीं आनी हेर मान्यवरां लागीं तांणी One second. Patron, I request both the captains will be playing future match. Bardes and Pedna. The captains only, two captains. T-shirt tenka doganko. Glenn. Tu tenka doganko T-shirt di. This is for Pedna. That is for captain of Pedna. Dhruv Pedna. Raju. These are the T-shirts sponsored by organizers for all the teams player. And now the captain of Bardes A, Bodgeshwar, Sri Rakesh Korgaonkar. I request. Uswandi. Open Kurunda. Now I request our honorable guest to please come on the ground for a small introduction with the teammates playing on the ground there. आम्ही स्टार्ट केलं. I like to start with the team of Pendna here. Pendna. Captain of Pendna, may kindly introduce themselves. Now I'm going to play with our guest. Captain Amir. For any reason, those who can't come here and the cricket lovers from throughout Goa, Maharashtra and Karnataka, they can view this match live on the YouTube, and you have to just click tenniscricket.in, the website, official website, tenniscricket.in.
We are very sorry to break the link of ongoing match here. Thank you. Thank you, everybody. I request the umpire to start with proceedings. धन्यवाद। सभी अतिथि गणों का फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब एलईडी विकेट्स और बेल्स वहां पर जा चुके हैं, यानी कि सीधे अगर गेंद विकेटों के ऊपर लगेगी, बेल्स नीचे गिरेगी तो लाइट आपको देखने को मिलेगी। और ये है क्रिकेट में बदलाव, और ये बदलाव तो होना है। पहला सफेद क्रिकेट खेला जाता था, सफेद बॉल, सफेद कपड़े, और अब आया है रंगीन क्रिकेट, रंगीन बॉल। ये है क्रिकेट में बदलाव, यानी कि परिवर्तन संसार का नियम है। 2 ओवरों का खेल समाप्त, रन संख्या यहां पर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार खेला हवा में गेंद, कैच का मौका, गेंद के नीचे खिलाड़ी, तीसरे विकेट का यहां पर हो चुका है पतन। दत्तराज गांव का यहां पर विकेट से किया गया स्वागत। है ना क्रिकेट की, तो डैजलिंग माफसा क्रिकेट से माफसा जाना जाता है ज्यादातर टेनिस बॉल क्रिकेट में। और उनके सर्वे सर्वा रोहन जी यहां पर बैठे हैं, और हमारे साथ ऐसी कोई प्रतियोगिता ना हो जहां पर डैजलिंग माफसा ना खेली हो और वहां पर रोहन ना गए हो। और आज यहां पर चेयरपर्सन के हैसियत से यहां पर आ चुके हैं। मैं मेरे कमेंटेटर टीम के ओर से उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भले ही डैजलिंग माफसा कभी कभार खेलती हुई नजर आती है, लेकिन हमारे जुबान पे ऊपर डैजलिंग माफसा का नाम हमेशा है और हमेशा रहेगा। उनके बिना तो टेनिस बॉल क्रिकेट अधूरा अधूरा सा लगता है। जैसे कि विजय केरवाड़ा की बात किया करते हैं, वैसे ही डैजलिंग माफसा के भी नाम लेना हमारा फर्ज बनता है। तीसरे विकेट का पतन, रन संख्या मात्र 11 रन, लड़खड़ाती हुई पारी। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, इमले के पत्ते से तूफानों में बंगला बनाया नहीं जाता। फिर एक बार गेंदबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के रितेश के लिए हल्के हाथों से खेला, गेंद समझ में नहीं आ रही है, और लाइट के ऊपर कैचेस पकड़ना उतना आसान नहीं होता। हमारे एक मित्र अक्सर कहा करते हैं, गेंद के ऊपर निगाहें और शरीर का सही संतुलन, तभी आप कैच को पकड़ सकते हैं। फिर एक बार गेंदबाज, इस बार रितेश के लिए फुल टॉस डिलीवरी, इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, गैप ढूंढा, गेंद चली गई सीमा रेखा पार 4 रन के लिए।
15 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर और अमीर है गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, रनआउट का खतरा था, लेकिन जानते हैं खिलाड़ी वहां पर सिंगल डबल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास समुंदर तो बहुत बड़ा है, बूंद बूंद जाने से क्या होगा। शायद यही सोच हर एक खिलाड़ी, जो कि अगर फोंडा की बात की जाए, क्योंकि 3 विकेट गिर चुके हैं, तीसरा ओवर समाप्ति की ओर है और रन संख्या मात्र 16, 3 विकेट गंवाने के बाद। क्रिकेट का माहौल इस मैदान के ऊपर, यहाँ पर क्रिकेट का माहौल अच्छा ही लगता है। गेंदबाजी के लिए आमिर फिर एक बार आगे जाकर खेलने की कोशिश, आखिर प्रयास रहा, कामयाब तो नहीं मिले। दूध में रहाया हुआ है रोशनी भरा स्टेडियम और इस मैदान के भीतर चलता हुआ है पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। इस प्रतियोगिता के सर्वा सम्माननीय दयानंद जी मांद्रेकर, समीर मांद्रेकर, नारायण मांद्रेकर, उनके साथ ग्लेन टिकेलो जो कि यहाँ के एमएलए, उनका भी यहाँ पर काफी सारा सहयोग। इस बीच 1 रन फिर एक बार खेला और मुकम्मल होता हुआ तीसरा 3 ओवरों का खेल यहाँ पर हो चुका है समाप्त। रन संख्या मात्र 17 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवरों का खेल अभी भी बचा है और मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे बंबई से आए हुए दोस्त सम्मानीय, जो कि मराठी के बादशाह, बेताज बादशाह कमेंट्री में माने जाते हैं, समीर पांडे को यहाँ पर मैं आमंत्रित करता हूँ और इस इनिंग से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। क्रिकेटला पोषक असं वातावरण SK जॉगिंग क्रिकेटियर्स आयोजित भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण अनुभवतोय व अनुभवणारा प्रत्येक एक थरार या ठिकाणी क्रिकेटचा मनसोक्त आनंद लुटण्यास क्रिकेट रसिकांना हा या ठिकाणी निश्चितपणे प्रवृत्त करतोय। पाठलाग होतोय धावसंख्येचा, मात्र पाठलाग करताना पेडणा क्रिकेट संघाचे फलंदाज कोसळतायत, गोलंदाज सज्ज होतोय। पुढे सरसावत मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवे, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक, झेल टिपला जातोय व मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, अखेर स्वतःची बहुमूल्य विकेट प्रतिस्पर्धी संघाला बहाल करण्याच्या प्रयत्नात होतोय। सफलता आणखी एक मिळते ती अर्थातच फोंडा क्रिकेट संघाला। एका नाजूक अवस्थेतनं अमितनं केलेली बहारदार फटकेबाजी या ठिकाणी फोंडा क्रिकेट संघाला सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवून देते व या सन्मानजनक धावसंख्येचं संरक्षण करताना जी चमकदार कामगिरी गोलंदाजांकडनं अपेक्षित होती ती कामगिरी भ्रमनिरास ठरणार नाही कर्णधाराची, आपल्या संघ साथीदारांची, आपल्या पाठीराखांची याची दक्षता घेत आघाडीचे गोलंदाज सुरेख अशी गोलंदाजी करतायत व सुरेख अशा गोलंदाजीवर एक चुकीचे फटके मारत मोठ्या फटक्यांच्या नादी जात फलंदाज एकामागोमाग एक बाद होत पेडणा क्रिकेट संघासमोर पराभवाचं संकट ठोकून उभं हे मैदानावर। रितेश हा स्ट्राईकला, डावखुराचा फलंदाज, चेंडू बॉलर बॅक ड्राईव्हद्वारे होतोय, फॉलो थ्रूवर क्षेत्ररक्षण होतंय, चेंडू निर्धाव गणला जातोय, सांघिक धावसंख्या नाममात्र 17, 17 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 4th इन प्रोग्रेस। 87 धावांचं आव्हान, त्यातील 17 धावा होत आहेत, अजूनही 70 धावांची आवश्यकता। परदा गोलंदाज सज्ज, फटका टोलवायचा होता पॉइंट क्षेत्रात, मात्र मनाजोगा फटका फलंदाजाच्या बॅटमधनं येत नाही, नो मॅन्स लाईन मध्ये चेंडू जातोय, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय। रितेश एकेर धावेने बराच वेळ खोळंबलेली 17 धावांवरची धावसंख्या ही 18 वर परावर्तित करतोय, 18 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात। एकामागोमाग एक मोठे झटके, अमोल त्यानंतर 900 असे खंदेवीर मैदानाच्या बाहेर जात आहेत व संघाला विजयश्री संपादन करण्याच्या प्रयत्नात या ठिकाणी रितेश व त्याचा साथीदार ही जोडी मैदानावर बहुधा महेश ही कामगिरी करताना दिसते। गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर,
अखोड टप्प्याचा चेंडू, ज्याला शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू म्हटला जातोय, बॅकफुटवर जाऊन स्क्वेअर कटचा फटका मारण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा, हा अखेर प्रयत्नच राहतोय. यष्टीरक्षक बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करतोय. आणखी एका निर्धाव चेंडूची गणना होत. नव्या विश्वासानं, नव्या चैतन्यानं प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना सहजासहजी मी मोठे फटके मारू देणार नाही या निर्धारानं गोलंदाज सिटी रोड एंडकडनं सज्ज होतोय. परत एकदा अखोड टप्प्याचा चेंडू, यावेळी मात्र दिशेमध्ये काहीसा गोलंदाज भरकटतोय, अपेक्षेच्या बाहेर चेंडू जातोय, सीमोल्लंघन करतोय व परिणामतः दंडात्मक एकेरी धाव वाईडच्या स्वरूपात प्रतिस्पर्धी संघाला बोनसच्या स्वरूपात बहाल केली जाते. तर एकेरी धावेचा दंड भोगला जातोय. फोंडा क्रिकेट संघाला 19 धावा धावफलकावर पूर्ण ह्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 4 गडी बाद 19 धावा. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू टोलवायचा होता, कव्हर क्षेत्रात चेंडू बॅटला हलके स्पर्श करतोय, वाईडिश गलीच्या दिशेने जातोय. शॉर्ट थर्डमॅनवर क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवून चेंडूची फेक करेस्तोवर एकेरी धाव सहजगत्या प्राप्त होतोय. ती महेशच्या खाती. एकेरी धावेने महेश स्वतःचं खातं खोलतोय. एकंदर धाव संख्या 19 वर परावर्तित होते. ती पेडणा क्रिकेट संघाची एक मोठं असं आव्हान 87 धावांचं पाठलाग करताना 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 19 धावा, 4थं षटक हे प्रगतीपथावर. माफ करा, 20 धावा धावफलकावर. अखोड टप्प्याचा चेंडू बॅटला चाटतोय, यष्टीरक्षकाच्या हाती विसावतोय व पंचांच्या निर्णयाची वाट न बघता मी बाद झालोय हे पूर्णतः जाणून मैदानाची वाट सोडून या ठिकाणी पॅव्हेलियनचा रस्ता डावखुऱ्याचा फलंदाज धरतोय. 5वा गडी बाद होतोय म्हणजे निम्मा संघ अवघ्या 20 धावांवर पेडणा क्रिकेट संघाचा हा तंबूमध्ये परततोय. 87 धावांचा पाठलाग करताना ज्यावेळी नाणेफेक झाली, नाणेफेकीचा कौल आजमावल्यानं केलेलं क्षेत्ररक्षण हे फोंडा क्रिकेट संघाकडनं संभाव्य चौकाराला नाममात्र एकेरी धावेत परावर्तित करत एकंदर सांघिक धावसंख्या 21 अशी धावफलकावर ही 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5 गडी बाद 21 धावा. गोलंदाज अमीर यावेळी सज्ज. आखोड टप्प्याचा चेंडू, शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा तगडा फटका मारण्याचा प्रयत्न फलंदाजाचा अखेर प्रयत्नच राहतोय. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षकाद्वारे पूर्ण होत आहेत. आणखी एक निर्धाव चेंडू, 21 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. यानंतरचा सामना हा हाय व्होल्टेज सामना निश्चितपणे या श्रीदेव बोडगेश्वरच्या भव्य दिव्य मैदानावर आपण अनुभवू, यात कोणतीही शंका नाही. आखोड टप्प्याचा चेंडू, बॅकफुटवर जाऊन फटका, चेंडू जातोय नो मॅन्स लँड मध्ये. शॉर्ट कव्हरवरनं चेंडूवर ताबा मिळवतोय तो एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं जाऊन क्षेत्ररक्षक. एकेरी धाव या ठिकाणी प्राप्त होते. फलंदाज बहुधा महेशला एकेरी धाव प्राप्त होते ती पेडणा क्रिकेट संघाला. सांघिक धावसंख्या 22 धावफलकावर ही 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. अमित राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने सज्ज. चेंडू हवेमध्ये, यष्टीरक्षक चेंडूच्या खाली जातोय. आणखी एक फलंदाज केवळ मैदानावर हजेरी लावण्याचं काम करतोय. मैदानाची वाट सोडून या ठिकाणी तो पॅव्हेलियनचा रस्ता धरतोय व पर्यायानं पेडणा क्रिकेट संघाला बसतोय तो 6वा हादरा, नाममात्र 22 धावा या धावफलकावर. यानंतरचा जो सामना होईल निश्चितपणे एक हाय व्होल्टेज असा सामना. दोन्ही संघ तुल्यबळ, दोन्ही संघ हे मातबगार, जे एका संघामध्ये सनम साळगावकर, मलिंगा, त्यानंतर शैलेश मिस्किन, पुनाजी अशा दर्जेदार खेळाडूंचा समावेश, तर दुसऱ्या बाजूनं पेडणा तालुक्यातील या ठिकाणी पारसा क्रिकेट संघ हाही एक तेवढ्याच ताकदीचा. राजू दाभोलकरच्या नेतृत्वाखाली, राम नागवेकर याच्या बहुमूल्य मार्गदर्शनाखाली अनेक उद्योन्मुख व अनुभवी खेळाडूंच्या मिलाफात खेळणारा संघ या
या दिवस रात्र क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये निश्चितपणे या मैदानावर हाय व्होल्टेज सामना आपण अनुभवू, यात कोणतीही शंका नाही व क्रिकेट रसिकांना या स्पर्धेचा खऱ्या अर्थानं आनंद मिळू शकेल तो यानंतरच्या सामन्यामध्ये, एवढं मात्र नक्की. क्रिकेट रसिकांना एक महापर्वणी निश्चितपणे या ठिकाणी गोवा राज्यातील खेळाडूंना एक मानाचं स्थान देण्यासाठी या ठिकाणी अखिल गोवा लेवलची तालुकास्तरीय क्रिकेट स्पर्धा या ठिकाणी भरवण्यात आली. खास करून गोव्यातील उद्योन्मुख खेळाडूंना वाव देण्यासाठी, त्यांच्या अंगातील असलेल्या कला गुणांना विकसित करण्यासाठी एक सुरेख असा प्रयत्न SK जॉगिंग क्रिकेटर्सच्या वतीनं या मैदानावर अवलंबला जातोय व याचे सर्व आहेत सन्माननीय श्री दयानंदजी मांद्रेकर व त्यांचे सहकारी, हे मात्र नक्की. गोलंदाज डावखुराचा सज्ज, सुरेख असा फटका विथ अलॉंग द कार्पेट, जमिनीचं चुंबन घेत चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने जातोय. आउटफील्ड थोडंसं धीमं व थोडंसं धीमं आउटफील्ड संभाव्य चौकाराला नाममात्र दुहेरी धावेत परावर्तित करतोय. जरी 2 धावा या फटक्यावर मिळाल्या तरी एक दिवसीय क्रिकेटमध्ये म्हणा, 2020 क्रिकेटमध्ये म्हणा किंवा लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये म्हणा, ज्या फटक्याला एक सन्मानजनक फटका म्हटला जातो असा फटका फलंदाजच्या बॅटमधनं निघतोय दुहेरी धावेच्या स्वरूपात. परत एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज, ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, जमिनी लगत फटका डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं, लॉंग ऑफवर क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय. थोडीशी खराब अशी फेक, प्रतिस्पर्धी संघाला एकेरी धावेचा बोनस, तर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या स्वतःच्या संघाला एकेरी धावेचा दंडात्मक दंड भोगण्यास कारणीभूत ठरविण्यात अशी फेक. 2 धावा मिळतायत त्या अर्थातच पेडणा क्रिकेट संघाला, ज्या दुहेरी धावांनी धावसंख्या धावफलकावर वधारते व सुधारित धावफलक आपल्याला दिसतोय. तो निश्चितपणे 26 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात खेळ समाप्त होतोय. तो बहुधा या ठिकाणी 5 षटकांचा खेळ समाप्त. 26 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात गोवा मधील म्हापसा शहर हे क्रिकेटमय झालेलं अनेक दिवस रात्र क्रिकेट स्पर्धेचा निश्चितपणे समावेश या स्पर्धेमध्ये. मात्र क्रिकेट रसिकांच्या स्मरणात चिरंतन राहणारी अशी स्पर्धा ही श्री दयानंदजी मांद्रेकर चषक या नावाने संबोधित झालेली SK जॉगिंग क्रिकेटर्स यांनी या ठिकाणी पुरस्कृत केलेली या श्रीदेव बोडगेश्वरच्या भव्य दिव्य मैदानावर आपण अनुभवतोय. या क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आपण पाहतोय व निश्चितपणे या SK जॉगिंग क्रिकेटर्सचं आम्ही मनपूर्वक अभिनंदन करतोय. निश्चितपणे त्यांचे आभार मानतोय की या गोवा राज्यातील एका भल्या मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आम्हाला या ठिकाणी येऊन समालोचन करण्याची संधी त्यांनी उपलब्ध करून दिली. डीजेचा थरार, त्या डीजेच्या थरारावर क्रिकेट रसिकांना या ठिकाणी आकर्षित करणारे असे या ठिकाणी साऊंड सिस्टीम, त्यानंतर या ठिकाणी लेझर लाईटच्या स्वरूपात आपण या ठिकाणी क्रिकेटच्या यष्ट्या बेल्स पाहू शकतो. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आजकाल आपण जे पाहतो तेच दृश्य, याची देही याची डोळा अनुभवण्याचा प्रत्यय येतोय. श्रीदेव बोडगेश्वरच्या भव्य दिव्य मैदानावर औचित्य SK जॉगिंग क्रिकेटर्स आयोजित भव्य दिव्य अशा स्वरूपाची तालुकास्तरीय T8 क्रिकेट स्पर्धा. मैदानावर या ठिकाणी सन्माननीय रोहनजी कवळेकर हे उपस्थित. आज या ठिकाणी त्यांची ओळख म्हापसाचे नूतन नगराध्यक्ष म्हणून, मात्र यापूर्वी क्रिकेटच्या माध्यमातून अनेक स्पर्धांमध्ये केवळ गोवा राज्यापुरती नव्हे तर सिंधुदुर्गामध्ये किंवा महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी त्यांची या ठिकाणी ओळख व एक अभिमानास्पद अशी बाब या ठिकाणी उल्लेखनीय अशी बाब आम्हाला घडते की आमच्यातीलच एक ओळखीचं व्यक्तिमत्व आज या म्हापसातील नगराध्यक्ष या पदावर विराजमान होते. निश्चितपणे आम्हा सर्व समालोचक संघाकडनं त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. परत गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज, ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, यावेळी मात्र एक हवाई मेल फटका डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं. दुर्दैवी ठरतोय फलंदाज, ज्या ठिकाणी त्याला षटकाराची अपेक्षा, त्या ठिकाणी षटकाराचं स्वप्न हे गडी बाद होण्याच्या स्वरूपात पूर्णत्वास येते व आणखी एक मोठा हादरा बसतोय पेडणा क्रिकेट संघाला. 7 गड्यांच्या मोबदल्यात नाममात्र 27 धावा धावफलकावर 87 या मोठ्या उद्दिष्टाचा पाठलाग करताना. SK जॉगिंग क्रिकेटर्स आयोजित भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेच्या या ठिकाणी उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याच्या आशेला आणखी एक दिलासा मिळतोय तो गोलंदाज क्षेत्ररक्षक यांच्या स्वरूपातनं तो फोंडा क्रिकेट संघाला व त्यानंतर हाय व्होल्टेज असा प्राथमिक फेरीचा सामना होईल या मैदानावर. तो बार्देशमधील एक तगडा संघ सनम साळगावकर पुनाजी मलिंगा सारख्या खेळाडूंच्या समावेशात खेळणारा बार्देश विरुद्ध या ठिकाणी पारसा क्रिकेट संघ राम व या ठिकाणी राजू दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा
गोलंदाज सज्ज होतोय. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू आखूड टप्प्याचा हलकीच दिशा दिली जाते. स्क्वेअर कटच्या फटक्याच्या माध्यमातून ती डीप पॉइंटला चेंडू सीमोल्लंघन करतोय, चौकाराच्या दिशेने जातोय व बराच वेळ निशब्द राहिलेला धावफलक चौकाराच्या माध्यमातून थोडीशी उभारी घेतोय. एकंदर 4 धावा सांघिक मिळत आहेत त्या पेडणा क्रिकेट संघाला. 31 धावा धावफलकावर 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. 31 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 6 ओव्हर इन प्रोग्रेस. गोलंदाज सज्ज, आखूड टप्प्याचा चेंडू, फलंदाज चुकतोय. क्षेत्ररक्षक मात्र आपल्याकडनं विशेष हानी होणार नाही याची दक्षता घेतोय. शॉर्ट फाईन लेगला एका नेत्रदीपक क्षेत्ररक्षणाद्वारे चेंडू अडवला जातोय. एका निर्धाव चेंडूद्वारे धावफलक स्थिरावला जातोय. तो 31 धावा 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. 7 गडी बाद 31 धावा. परंतु गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेनं फटका जातोय. क्षेत्ररक्षण तर सुरेख होतंय. एकेर धाव फलंदाजला मिळते एका मोठ्या फटक्याच्या माध्यमातून. या एकेर धावेने धावसंख्या बदलते ती 32 धावांवर. फोंडा संघ हा हळूवाररित्या विजयाच्या दिशेनं मार्गक्रमण करतोय, तर दुसऱ्या बाजूनं पराभवाच्या खाईत लोटला जातोय तो पेडणा क्रिकेट संघ. एक चमत्कारच पेडणा क्रिकेट संघाला वाचवू शकतो. मात्र क्रिकेटमध्ये हे चमत्कार वारंवार घडत नसतात. मात्र तो दुर्मिळ असा चमत्कार या मैदानावर घडेल या अपेक्षेनं या ठिकाणी संघ साथीदार या मैदानावर ठोकून उभे आहेत. ते पेडणा क्रिकेट संघाचे आपल्या संघ साथीदारांच्या कामगिरीची अपेक्षा करतायत. तर दुसऱ्या बाजूनं दिलासा देणारी अशी फोंडा क्रिकेट संघाला अशी बातमी की 5 गडी बाद 35 या धावसंख्येवरनं अमित नावाचं वादळ श्री बोडगेश्वरच्या मैदानावर घोंगावते. त्याला जीवनदान मिळतंय व हेच घोंगावणारं वादळ गोलंदाज पेडणा क्रिकेट संघाच्या नतमस्तक होण्यास प्रवृत्त करतोय. सलग 5 खणखणीत त्याचे षटकार, 86 अशी सन्मानजनक धावसंख्या व गोलंदाजांना काहीतरी किमया करून देण्यास प्रवृत्त करणारी अशी कामगिरी फलंदाज अमितची. त्याच्या कामगिरीवर आम्ही पाणी सोडून फेडणार नाही या अपेक्षाने त्यांची धीरोत्तर अशी गोलंदाजी. सुरेख अशी पंचगिरी या मैदानावर आम्ही अनुभवतोय. गोवा क्रिकेट असोसिएशनच्या नामांकित पंचांद्वारे या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पंचांची जोडगळी एक सुरेख अशी कामगिरी या मैदानावर घडवताना दिसते. आमचे मित्र सुशांत साळगावकर, त्यानंतर राजेश सिंगापूरकर, नरेश पारसेकर ही पंचांची जोडगळी मैदानावर. बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका, फॉलो थ्रूवर झेल टिपण्याची संधी, चेंडू हातनं निसटतोय. पर्यायानं 8वा गडी टिपण्याची सुसंधी गोलंदाजाला निश्चितपणे दवडली जाते व एक निर्धाव चेंडू गणला जात. एकंदर सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 32, 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. 32 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट. परदा गोलंदाज सज्ज, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, फलंदाजाचा असफल. सलग 2 वेळा फलंदाज जगतोय मोठा फटका मारण्यास, एकेरी धाव घेण्यास. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. 32 धावा. 87 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही 55 धावांपासून दूर व 7वं षटक हे प्रगतीपथावर. परत एकदा आणखी एक निर्धाव चेंडू, धावसंख्या स्थिरावते ती 32 धावांवर. पंचेंकडनं गोलंदाजीसाठी गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं. याही वेळी गोलंदाज चकतोय. केवळ हवेमध्ये या ठिकाणी वार केले जात आहेत. ते फलंदाजांकडनं विशेष हानी प्रतिस्पर्धी संघाला होत नाही. कोणताही अतिरिक्त दबाव येत नाही. 7वं षटक प्रगतीपथावर. 32 धावा ह्या धावफलकावर 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रत्येकदा चेंडू पॅडला आदळतोय. विश्वास कमी, उत्साह जास्त भरलेलं या ठिकाणी अपील. या ठिकाणी पंचांवर अतिरिक्त दबाव आणण्यास प्रवृत्त करणारं कोणताही विशेष परिणाम या मैदानावर घडत नाही. सलग 5वा चेंडू या ठिकाणी निर्धाव गणला जातोय. काहीसा एकतर्फी असा सुरू असलेला सामना. 32 धावा 7 षटकांच्या सांगतेखेरी 7 गड्यांच्या मोबदल्यात. केवळ औपचारिकता नाममात्र शेष. शेवटच्या अंतरिम 6 चेंडूंचा खेळ बाकी व या 6 चेंडूंवर 55 धावांची बहुमूल्य गरज ही पेडणा क्रिकेट संघाला. जवळपास या औपचारिकतेचं षटक फेकण्यास कोण गोलंदाज सज्ज होतोय यावर शिक्कामोर्तब होणं बाकी. पंच नरेश यांच्या डाव्या हाताकडनं मापसा रोड एंडकडनं या ठिकाणी गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय तो फोंडा क्रिकेट संघाकडनं व समोर आहे स्ट्राईकला तो फलंदाज अमित.
अंतरिम षटक. डावखुराचा गोलंदाज लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने फेकतोय तो गोलंदाज. परत एकदा प्रयत्न असफल जातोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. केवळ नाममात्र 5 चेंडूंचा इनिंग समाप्त होण्यास अवधी हा शेष. एक सुरेख असं क्रिकेटला पोषक वातावरण. क्रिकेट रसिकांचा भ्रमनिराश होणार नाही, त्यांना कोणतीही विशेष हानी होणार नाही याची दक्षता घेत प्रेक्षक वर्गांसाठी एक प्रेक्षक गॅलरी उपलब्ध करून दिली जाते. यावेळी मात्र फटका कव्हरच्या दिशेनं, ज्या ठिकाणी मोठ्या फटक्याची अपेक्षा फलंदाजला, जो क्षेत्ररक्षक रोषणाचा सापळा या ठिकाणी सजवला होता त्या सापळ्यात फलंदाज अडकला जातोय. बऱ्याच वेळेनंतर एक टायमिंग फटक्याद्वारे होते, मात्र हे अचूक टायमिंग क्षेत्ररक्षकाच्या हाती 8व्या सफलतेच्या स्वरूपात फलंदाजला झेलकी धुण्यास प्रवृत्त करतंय. 8वा गडी बाद होतोय पेडणा क्रिकेट संघाचा 32 धावा त्या धावफलकावर. जवळपास 10 चेंडू हे 32 धावसंख्येवर निर्धाव गणले जात आहेत. एक अचूक टप्प्याची गोलंदाजी व या अचूक टप्प्याच्या गोलंदाजींवर फलंदाज हे निशब्द होत आहेत, निरुत्तर होत आहेत व एकामागोमाग एक बाद होत मैदानाची वाट सोडत या ठिकाणी पॅव्हेलियनचा रस्ता धरताना दिसत आहेत या मैदानावर. 32 धावा 8 कार्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी फटका जातोय तो लॉंग ऑनच्या दिशेनं. मिड विकेटवरनं क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय. एकेर धाव फलंदाजाच्या खाती. बराच वेळ 32 धावांवर खोळंबलेली धावसंख्या 33 वर उभारी घेते. अंतरिम 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. या औपचारिकता समाप्त होण्यासाठी समोर आहे फलंदाज या ठिकाणी पेडणा क्रिकेट संघाचा. 32 धावा 33 धावा 8 कार्यांच्या मोबदल्यात. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने गोलंदाज सज्ज होतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू मिड विकेटच्या दिशेनं फटका. डीप स्क्वेअर लेगवरनं क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय. दुसरी धाव सहजासहजी मी देणार नाही या इराद्यानं गोलंदाजाकडे फेक होते. नाममात्र एकेर धावेने धावफलक पुढे सरकतोय. 34 धावा 2 चेंडूंचा अवधी हा बाकी. परत एकदा एक हवाई फटका. चेंडू डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली जातोय. झेल टिपतोय. 9वा गडी बाद होतोय तो या ठिकाणी अर्थातच पेडणा क्रिकेट संघाचा. 9 गड्यांच्या मोबदल्यात एकंदर 34 धावा धावफलकावर. बहुधा शेवटचा चेंडू या इनिंगची सांगता होण्यासाठी व या सामन्याचा निकाल स्पष्ट होण्यासाठी बाकी. शेवटचा फलंदाज मैदानावर येतोय. निश्चितपणे या सामन्यामध्ये सर्व खेळाडूंना उपलब्धता प्राप्त होते. प्रत्येक खेळाडूला फलंदाजीची संधी मिळते व शेवटचा फलंदाज या ठिकाणी मैदानावर जातोय. या अंतरिम औपचारिक चेंडूचा सामना करण्यासाठी 34 धावा धावफलकावर पूर्ण होत आहेत. 87 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही तब्बल 52 धावांपासून दूर व केवळ एका चेंडूचा खेळ हा बाकी. अपूर टप्प्याचा चेंडू. शेवटच्या चेंडूवर एक तगडा असा फटका. काहीसा उशीर मात्र दिलासा देणारा असा फटका 40 धावफलकावर झळकवून देतोय तो पेडणा क्रिकेट संघाला. एका मोठ्या फटक्याने या सामन्याचा शेवट होतोय. तब्बल 46 धावांनी विजयश्री संपादन करत या ठिकाणी उपांत्य फेरीमध्ये आपल्या संघाला पोहोचवण्याचं स्वप्न. अमितची आक्रमक फलंदाजी फोंडा क्रिकेट संघासाठी कामी येते. फोंडा क्रिकेट संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करतोय. यानंतर होणारा सामना बारदेश विरुद्ध. I request the captain of Bardesh and Pedne Dhruv to line up. Please hurry up. We were expecting some good finish from, but the good bowling performance shown by the team from Fonda after they were in miserable condition once in 4 overs of the inning.